Hello friends, how are you all? I hope you're all fit and fine and steady at your own places. आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अरुण गोस्वामी हमारे YouTube चैनल में अरुण द कोच. By profession, I am a sales training and coach for life, for behavior and communication skills. I work very closely with the people for improving their personality and their presentation skills as well as public speaking skills. For last 20 years, I am involved for the benefit and development of the human and people. आगे बढ़ने से पहले I would like to say thanks from the core of my heart to all my viewers and all my subscribers. Please do subscribe my channel. Please watch and like my videos. This entire channel, whatever work I am putting across through the channel of Arun the Coach, is totally dedicated to all the people who want to shift their life from a typical perception to a reality of life. I would like to dedicate all the works across this channel to those people who are looking for a successful or a peaceful life in their corporate, in their personal as well as their professional front. The basic intention of this particular channel or the purpose for me to put my experience across in this channel is to make your life easy. Because if there is an easiest way to lead your life, why can't we approach towards that easiest way and और एक खुशहाल जिंदगी हम लोग जी सकें. चलिए आगे बढ़ते हैं. This video is basically the continuation of You Can Sell Anything. मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. यू कैन सेल एनीथिंग मैं एक टोटल 20 वॉल्यूम्स में धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं. यू कैन सेल पार्ट 1, यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 2 एंड यू कैन सेल एनीथिंग पार्ट 3 आई हैव ऑलरेडी रिलीज्ड फॉर यू पीपल टू व्यू इट. आई वुड लाइक टू वेलकम योर थॉट्स, योर फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स, एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक इट please share within your network and subscribe my channel. Each and every comment and each and every subscription is a great source of motivation as far as me is concerned. So please watch You Can Sell Part 1, which will talk about the pre-mindset or the growth mindset before entering into the process or the profession of sales, whether you are doing your own job or doing your own business or you are in a corporate sector. You Can Sell Anything Part 2 is dedicated to the activities which has to be followed on the ground. And You Can Sell Anything Part 3 is dedicated for after the sales has been completed or after the business has been generated, or you can say in an easiest language, post sales service. ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. हम लोग You Can Sell Anything वॉल्यूम 4 में पहुंच चुके हैं. You Can Sell Anything Part 1 में I talked about 8 essential elements. 8 ऐसे तत्वों के बारे में मैंने बात की थी जो कि एक आदमी को प्री माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, मैच्योर माइंडसेट बनाने में बहुत सहायता करता है, सो दैट व्हेन ही एंटर्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स और पहले से ही अगर सेल्स में काम करता हो तो उसको एक पॉजिटिव और एक फाइटिंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकता है. जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं 8 एसेंशियल एलिमेंट्स का इंटेंट वी हैव कवर्ड. आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल माय डिटेल्स इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज. प्लीज वॉच दोज वीडियोज. इट विल मेक योर लाइफ इजी एंड मोर डिसिप्लिन्ड. इंटेंट वी हैव कवर्ड, ऑथेंटिसिटी वी हैव कवर्ड, पैशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ वी आर एंटरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, not only in sales, not only in our sales based jobs or business. It is useful for each and every part of your life, because passion and patience, they both are cousin brothers. They work together. If they work together, the result will be fantastically well. If they don't coordinate with each other, अगर ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं तो ना पैशन काम आता है, ना पेशेंसफुली हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है. हार्डवर्क धरी की धरी रह जाती है. हार्डवर्क एक ऐसा धागा है
जो कि पैशन और पेशेंस को पकड़ के रखता है। ये मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये किसी किताब में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इट्स ऑल प्रैक्टिकली प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। And I have an experience of training more than 1 lakh people in the industry across the country. So I have seen them. I have seen them to implement all these techniques. और वो अपने ज़िंदगी में बहुत डेवलप कर चुके हैं, मैच्योर्ड कर चुके हैं, ग्रो भी कर चुके हैं। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, दिस चैनल विल मेक योर लाइफ ईजी। सो पेशेंस एंड पैशन, हम लोग ज़्यादातर पेशेंस लूज कर जाते हैं। Once you lose the patience or once you lose the hand of patience, आप पैशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और हम लोग इस कश्मकश में डूब जाते हैं कि मेरा पैशन क्या है, मेरा पैशन क्या है। पैशन कम्स थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर पास्ट। पैशन कम्स थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स। कुछ भी घटनाएं घटी हैं आपके जिंदगी में, आपके अतीत में, आपके पास्ट में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रेजेंट में। क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे साथ पास्ट में होती हैं, जो भी चीज़ें हम पास्ट में देखते हैं, जो भी चीज़ें हम पास्ट में एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं, सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट के परसेप्शन और रियलिटी के बीच में रुका हुआ रहता है। आप अगर रियलिटी की तरफ जाते हैं तो आपको पैशन और पेशेंस का मतलब समझ में आता है, आप हार्ड वर्किंग बन जाते हैं। अगर आप परसेप्शन के थ्रू जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि मुझे अगर बाउंसर खेलना नहीं आता, द मोमेंट, और जितनी बार मैं बाउंसर क्रिकेट के ग्राउंड में जितनी बार बाउंसर फेस करूंगा, मेरे अंदर एक नेगेटिविटी आती जाएगी कि मैं बाउंसर खेलना नहीं आता। तो इस तरीके से ग्राफ तैयार होता जाता है आपकी लाइफ में कि आप बाउंसर नहीं खेल सकते। तो ये बाउंसर ही आपके जिंदगी को ले डूबता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वेस्ट इंडीज का बेस्ट बॉलर और वर्ल्ड बेस्ट बॉलर कटनी वॉल्श का एक बॉल आया था, टेस्ट का गेम था, और दूसरी तरफ इंडिया की क्रिकेट टीम थी और विनोद कांबली बैटिंग कर रहे थे। The moment he has faced the bouncers on continuous basis, he was not able to duck even, मतलब उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। तो उसके माइंड में एक परसेप्शन क्लियर हो गया। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, सुनील गावस्कर को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर के ले लीजिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन को ले लीजिए, अजय जडेजा को ले लीजिए, ये भी सारे बाउंसर खेल के ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बाउंसर खेल के परसेप्शन तैयार नहीं होने दिया। They keep on trying. They maintained patience. They maintained patience. Once they maintained patience, passion and patience go hand in hand. तभी passionate हो जाता है इंसान। Patience plays a very important role to maintain your passion. और हार्ड वर्क ये पैशन और पेशेंस के बीच में कड़ी बना के रखता है, टूटने नहीं देता। So patience is very important if you really want to enjoy your passion. अदरवाइज आप सेटिस्फाई भी हो सकते हैं बिना पेशेंस के, बिना मीन्स योर पैशन के। आप एक मशीन की तरह काम करके ज़िंदगी में बहुत कुछ ये कर सकते हैं, बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं। लेकिन वंस योर सोल क्वेश्चंस यू, आपको अगर आपकी आत्मा पूछेगी कि व्हाट स्पेशल यू हैव यू डन द वर्क और हैव यू कंप्लीटेड दैट वर्क जो कि आप बेहद पसंद करते थे, क्या आप उस चीज को फेस कर पाएंगे? इसके लिए सी गाइस, मैं ये चीज बार बार कहता हूं, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो ये सवाल आपसे मेरा है, क्योंकि आपको पेशेंस और पैशंस की दोनों की जुगलबंदी समझनी पड़ेगी। रेलवे ट्रैक जैसा है, द मोमेंट ट्रैक का कोई भी हिस्सा अगर गड़बड़ा जाता है, पूरा ट्रेन एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं या फिर ट्रेन रुक जाती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे माहौल आते हैं, लेकिन उस वक्त क्या करना पड़ता है? ट्रैक को मरम्मत करनी पड़ती है, मरम्मत करनी पड़ती है, स्क्रू टाइट करने पड़ते हैं, जो भी रुकावटें हैं उसको साफ करना पड़ता है, जो भी
दिक्कतें हैं उनको समझना पड़ता है, सेल्फ अवेयर होके समझना पड़ता है, माइंडफुलनेस होके समझना पड़ता है, ओपन माइंडेड होके समझना पड़ता है। ऑटोमेटिकली पैशन और पेशेंस एक साथ फिर से ट्रैक में आ जाते हैं और आपकी जिंदगी की गाड़ी उस पटरी में चलने लगती है। दैट्स वाई दिस फर्स्ट सेंटेंस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। पेशेंस एंड पैशन गो हैंड इन हैंड। वंस दे गो हैंड इन हैंड, पेशेंस टू लिव योर पैशन, तभी आप अपने पैशन के साथ जी सकते हैं। पेशेंस रखना पड़ता है। तीसरा वाला आप सेंटेंस देखेंगे जो मेरा सेकंड के बाद थर्ड वाला सेंटेंस है, वॉक लाइक एन ऑक्स। बैल देखा है आपने? बैल, खेत में बैल को इस्तेमाल किया जाता है, गाय को इस्तेमाल नहीं की जाती, किसी और जानवर को यूज नहीं किया जाता। बैल ही हल जोतता है। Ox plays a very important role for every farmer. Do you know why? What is the science behind it? What is the psychology behind it? कि walk like an ox. लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे। ज्यादातर अपनी गलतियों पे शर्मसार तभी इंसान होता है, खुद के शर्म होने पे ज्यादा उसको फीलिंग नहीं आती, लोग ज्यादा उसको शर्म महसूस कराते हैं। पीपल अराउंड अस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बट मैंने आपको हर एक वीडियो में कहता हूं, द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। आपके अंदर से ही ट्रांसफॉर्मेशंस होना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके जिंदगी को हाथ तक लगाने नहीं चाहिए। वो आपके आसपास आएंगे जरूर, आपको डिस्टर्ब करेंगे। वॉक लाइक एन ऑक्स, सर नीचे, आप सिर्फ काम करते जाइए। वर्क हार्ड, फॉलो योर पैशन, बी पेशेंस। दैट्स वाई आई हैव रिटन। अगर आपको इस चीज के बारे में और ज्यादा साइकोलॉजिकली इसके अंदर जाना है, सो इसको सिर्फ एक ही चीज, इसका बिहेवियर समझना है, ऑक्स का बिहेवियर। गर्दन नीचे, काम पे ध्यान, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। ऑक्स सिर्फ हल ही जोतता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। डिटरमाइंड एक्सीलेंस, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने काम में ध्यान देंगे उतना ज्यादा आप एक्सीलेंसी की तरफ जाएंगे। परिपक्वता जिसको कहते हैं हम लोग, अर्थात में परफेक्शन, निटी-ग्रिटीज को पहचानेंगे, मार्केट को पहचानेंगे। सी, ये 8 एसेंशियल एलिमेंट है आपके माइंड का, माइंड सेट मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये माइंड सेटिंग मैन्युफैक्चर मशीनरी है, ये 8 एसेंशियल एलिमेंट। इस मशीनरी से आपको गुजरना पड़ेगा। इस मशीन से आपको अपनी जिंदगी को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इंटरप्रिटेशन प्रोसेस को, अपने माइंड के सोचने के तरीके को आपको इस मशीनरी से निकालना पड़ेगा। तभी जाके आप सेल्स में कभी फेलियर का मतलब नहीं समझेंगे। फेलियर अगर आपके साथ होता भी है, आप उसको अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। चलो एक और बार कोशिश करते हैं, चलो एक और बार कोशिश करते, 2 बार कोशिश करते हैं, 1 हफ्ता कोशिश करते हैं, 1 महीना कोशिश करते हैं, 1 साल कोशिश करेंगे। वंस यू बिकम द मास्टर ऑफ दिस, देन यू बिकम एन एक्सीलेंट। तो ये आप पेशेंस आपके एक्सीलेंट लेवल तक पहुंचने के लिए डिटर्मिनेशन देता है। डोंट एक्ट स्पेशल। आपने अगर इस महीने का टारगेट अचीव कर लिया, आप कोई स्पेशल नहीं हो गए। आपको स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज होता है वो एक्चुअली। महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा है कभी? ही नेवर कम्स आउट विद एनी एक्सट्रीम इमोशन इन एनी ऑफ सिचुएशन इन हिज लाइफ। ही जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडियन टीम, हिज विकेट कीपिंग स्किल्स, making sure that each and every player is intact, each and every player is in the same thought process of winning the match. और आपने देखा है इसका रिजल्ट। Once Mahendra Singh Dhoni has put in all the brains out in each and every match, सारे मैच में जितने भी उन्होंने खेले हैं, he was not emotionally, not getting extreme emotion whether he is winning a match or losing a match. You don't have to act like a special. Be special. Automatically आप
लोगों को स्पेशल आपको लोग बनाएंगे। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं स्पेशल हूं। नो नीड, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आपके इमोशन फ्लो आउट होते जाएंगे। मैनेज योर इमोशंस, मैनेज योर थॉट्स। मैं एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, नो वन कैन कंट्रोल योर माइंड, माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यू कैन कंट्रोल ओनली द थॉट्स। आप चिंताधाराएं को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये माइंड कंट्रोल करना, इमोशन कंट्रोल करना इज अ saving the time, your precious time, so that you can concentrate and be patient towards your passion. मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आज नहीं तो कल आप इस चीज का मतलब समझेंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सैक्रिफाइस टुडे, एंजॉय टुमारो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बहुत सारी चीज हम लोग खो देते हैं। आज पार्टी करेंगे, आज मंथली टारगेट, वीकली टारगेट मीट हुआ है। नहीं, पार्टी इज गुड, बट अचीव समथिंग गुड। पीपल शुड कम टू यू एंड मेक यू फील दैट यू आर स्पेशल। वंस पीपल शुड कम टू यू, देन यू शुड पैट योर शोल्डर कि नहीं, कुछ सब्सटैंशियल काम मैंने किया है आज। इस मंसूबे से अगर आप सेल्स फील्ड में जाएंगे माय डियर फ्रेंड, then only you are going to make a mark in the sales field. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को नहीं समझाते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बाद आपको फील्ड में छोड़ देते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू आउट टू मेक एंड मैन्युफैक्चर एंड गेट इनसाइड। आई वॉन्ट यू टू गेट इनसाइड दिस माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। It's a mindset manufacturing machinery. These 8 essential elements is a proven track record, irrespective of organization, irrespective of product, irrespective of platform. ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, tangible product हो, intangible product हो, idea हो, concept हो, anything, you can apply this. And please comment me and please share your thoughts and feedbacks. It's a time-bound process. Be with me. So sacrifice today, enjoy tomorrow. Otherwise, you have to sacrifice tomorrow also. Understand this particular subject. Understand this particular line. Reach your goal, start living it. गोल सेटिंग, ये पेशेंस के वजह से ही गोल्स अचीव करते हैं लोग। डटे रहना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है। एक काम एक तरफ से नहीं हो रहा, परसिवरेंस भी जरूरी है, परसिस्टेंसी भी जरूरी है। परसिस्टेंसी का मतलब होता है 20 साल से एक ही काम कर रहा हूं। परसिवरेंस का मतलब होता है कभी कभी 20 साल में मैं अलग अलग काम करते हुए अपने आप को चैलेंज देता हूं और अलग अलग काम सीखता जाता हूं। इसलिए जो आप देखेंगे, जो काम एक आदमी जो 20 साल से एक ही काम कर रहा है और एक आदमी 20 साल से अलग अलग काम करता जा रहा है, उस दूसरे वाले आदमी में अलग काम करने की स्किल होती है। ये सारी चीजें पेशेंस के साथ ही बढ़ती हैं। आपका नॉलेज पेशेंस के वजह से बढ़ेगा। किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कहां से नॉलेज आएगा आपके पास? मैं आज 10 क्लाइंट से मिलूंगा, आज मूड नहीं है, 5 क्लाइंट से मिलूंगा, तो आप पेशेंस कहां है आपका? आप पेशेंस के साथ काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। और जिस वक्त आप पेशेंस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, पैशन आपका साथ नहीं देगा, वो रूटीन में आ जाएगा। रूटीन वाला काम करके आपको मजा आता है जिंदगी में? मुझे तो नहीं आता। आई ऑलवेज फॉलो माई पैशन एंड आई ऑलवेज बी पेशेंटफुल। आई ऑलवेज बी पेशेंस ऑल द टाइम। आई मेंटेन पेशेंस। आई बिलीव इन माई पेशेंस। आई बिलीव इन माई टैलेंट। आई बिलीव इन माई skill. I believe in my knowledge. I believe all the preachings that I have received from all my co-workers and seniors. So you do also have to be patient. Be patient. Patient रहने से आपका पैशन आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ऑटोमेटिकली हार्डवर्क करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। ये पेशेंस और पैशन ही आपको वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। गाइज, ये बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट से निकल के आ रहा है। ये आप किसी किताब में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में आप इसको ये नहीं मिलेगा। These are all the experiences or the observations that I did in my corporate life. Still I am following that. Right? So reach your goal. Start living it. जब तक वो गोल अचीव नहीं करेंगे, तब तक वो गोल में रहने का मजा नहीं है। So patience plays a
very important role in your life to maintain a passionate life. And patience and passion को पकड़ के रखता है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क को और ज्यादा मजेदार बनाता है आपका झुकाव टूवर्ड्स नॉलेज गेनिंग. आपका झुकाव, योर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स गेटिंग मोर स्किलफुल. आप मशीनरी स्किलफुल ले लीजिए, नॉन मशीनरी स्किल ले लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल ले लीजिए, बिहेवियरल स्किल ले लीजिए. वंस यू कीप ऑन डूइंग, ये सारी चीजें मिलके ही आपकी लाइफ नॉन सक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनता है और नॉट सो सक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनता है. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन अनसक्सेसफुल. So I hope that I have fulfilled that what I had committed as far as the fourth element of the 8 essential element. आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे से. Your feedback and comments is a big motivational factor for me. And last but not the least, please subscribe my channel and stay connected. Stay safe. Jai Hind. Thank you so much.